Jai Chinindar, everyone. Good morning. I mean, good evening in India. Just have a habit. Okay, Manju Didi, आपको yes. Okay. जय जिनेंद्र. पहले we'll start with 3 in Parmantar and उसके बाद फिर और बात करते हैं, ठीक है? Okay. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वचायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्य सिंह परमं हवै मंगलम. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वचायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनो, मंगलानंच सव्य सिंह परमं हवै मंगलम. नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो वचायानम, नमो लोए सब साहुनम, एसो पंच नमोकारो सब पावपनासन, मंगलानिच सव्य सिंह परमं हवै मंगलम. बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मानतुंग सूरी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, जिन शासन देव की. Again, I just want to check if Anita Didi is here. Not yet. Okay. So here we are back with our new series of learning about Bhaktamar Stotra. अभी पहले हमारे 21 days के सेशन बहुत ही सक्सेसफुल रहे. I mean, it was very nice कि सबने कहा कि सेशंस बंद ही मत करिए. एंड देन ऐसे ही बस मन में था कि भाव भी सीखने हैं हमको हर सेशन हर स्तोत्र के, हर श्लोक के, भक्तामृत स्तोत्र के श्लोक के भाव भी समझ आने चाहिए. तो वी आर सो फॉर्चुनेट कि अनीता दीदी वाज अवेलेबल, कि उन्होंने वो टीच करेंगी आज, वो इंस्ट्रक्ट करेंगी. You know, and we have Manju Didi here for all of her blessings. Manju Didi, आप म्यूट पे मत जाइए प्लीज. So yeah, so here we are going to start this. Jai Jinendra, and very warm welcome to one. Manju Didi, आपकी आवाज नहीं आ रही. आवाज नहीं आ रही. Okay. Hello, can you hear me? Okay. Yes, Didi. Okay. Hello. Hello. Can you hear me? Hello, Aparna. Can you hear me? Rishi ji. Hello. Yes, Didi. Hello. Yes, Okay. Didi. Okay. Jai Jinendra, and very, very warm welcome to one and all. We have 350 registrations, and all the applause goes to Aparna and Siddharth ji, who started this kids session as well as adult session. And behind this, even Neha Mudasia ji, her effort, because she came to learn in India, and then she brought Naina Parikh ji and Siddharth ji, and they formed a group of chanting Bhaktambar every Thursday morning, and how it has grown so much. So I would like the core team who's organizing in America, North America, Aparna, Siddharth ji, and our teachers of Pathshala, Dr. Neelam and Dr. Ashi, who's doing PhD on Yantras of Bhaktambar. So they are handling the kids session very well. And I would welcome today's main teacher, Dr. Anita Agarkar, who has done PhD on 6 shloka for improving IQ and memory skills. Plus, she is a Preksha Dhyan teacher. And I welcome both her daughters, Anu and Manu, who have been singing Bhaktambar in their melodious voice and teaching piano and many other things to children in Mumbai. They are attached to Academy. Anu is working with Jamnalal Bajaj Institute training teachers.
And Manu, she has done her this thing from Music School of A.R. Rahman Studio. And if you will hear their CD, you have already heard their melodious voice. If you will hear their CD with mantra and riddhi, and that is like mesmerizing session. It itself is like a meditation. So I welcome them. And the second speaker would be Charu Jain. Charu, who learned Bhaktambar through YouTube. And so quickly, you know, when she was in Lucknow, she immediately, I told her about EORTC QLQ version. She immediately downloaded from Google. And she went in the Cancer Institute, took up 60 case studies, started working, and see her series has come up till 26 number shloka Charu has done. So it is your effort. So we will hear that full story from Charu, how she reached here. So she will be narrating the stories like Nanima and Dadima, grandma. You have already heard her stories, and not only stories of which are expressed in books and Shastra. The actual case studies which Charu has done. Recently, she controlled one fire 2 days back. So we have many live stories which Charu will share. And with her would be Neha Mudasia ji, who has like mastered the riddhis. The way she explains the riddhi is amazing. Like Ellen from Emory University, she has done PhD on riddhis of Bhaktambar. She had come to India, taken training, and she was presenting with me in Loyola Marymount University. But I will say, although she has done PhD on riddhis, but the way Neha Mudasia ji explains the riddhi is not easy. In my 12 years of experience, I would say the best after Sudha Sagar Maharaj ji, anybody who explained riddhis is Neha Mudasia ji. And I would like to thank Rishi ji, who is the backbone of this whole thing. Like he's making the website lively, attaching all the videos, audios, whatever is happening, controlling. Like he must be, what Aparna is working, he must be working double the hours, but he never comes on. So Rishi ji, can we see you? Can everybody see you? Rishi ji, please. Can we see Rishi ji? Can we just, everybody नहीं wants दीदी वो भी आएंगे नहीं. Okay, okay. Okay, so we will talk to him later. So now I will not take much of your time. And Anita aage, Anita and Anita's daughters? She's here, yes, they're ready. Okay. So Siddhaji, all the best. And we start with Anita. Thank you, Didi. Oh. Anita Didi, you're muted. I'm trying to unmute you. आप वहाँ पे click करिए. चलिए, सभी को जय जिनेंद्र. आप सब यहाँ इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं. मेरा आवाज क्लियर आ रहा है तो ऐसा करेंगे, आवाज नहीं आए तो इस तरह से करेंगे. आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? बिल्कुल आ रही है दीदी. बिल्कुल आ रही है. तो चले एक छोटा सा हम मेडिटेशन कर लेते हैं. भगवान को याद करते हुए, देव शास्त्र गुरु का वंदन करते हुए आंखों को आप कोमलता से बंद कर लें. बैकबोन स्ट्रेट रखें, गर्दन सीधी रखें, कोई अकड़न जकड़न ना रहे, शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें. आंखें बंद कर लें, हाथों को वंदन मुद्रा में लेके आए. एक प्रार्थना करते हैं कि हम जिस कार्य के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं, भगवान सरस्वती माँ हम सभी को बुद्धि की प्राप्ति दें, सद्बुद्धि प्रदान करें.
नमस्कार प्रणमो प्रथम जेहि ध्यावत मुनिराज मन वांछित पूर्ण करना परमामोक्ष सुखदाय अविरल धनयुत शब्दयुत जन मन देत सहाय मुनि जन सेवक तीर्थ समान नमो शारदा मां। ज्ञान शलाका तारी पुनि खोले जिन जगन उन सतगुरु के चरण कमल में मैं वंदू देन मैं वंदू देन शुरू करते हैं आज का हम क्लास। हम थोड़ा सा एक संवाद कर लेते हैं कि आज हम यहाँ सब इकट्ठा हुए हैं। इतने दिनों से इतने सारे स्पीकर्स को सुन लिया है, इतने सारे भक्तामर के ऊपर चर्चाएं हो चुकी हैं, बहुत सारी बातें हो गई हैं, फिर भी हमारी पिपासा, हमारी प्यास क्यों शांत नहीं हो रही है? आखिर हम क्या और इसमें सुनना चाहने रहे हैं? कोई बताना चाहेगा कि आज हम क्यों इकट्ठे हुए हैं? सबको पता है कि भक्तामर पढ़ने से ये है, भक्तामर में ये है, भक्तामर में ये है। तो कोई अपने जवाब देना चाहेगा कि आज वो किस उद्देश्य से यहाँ पर इकट्ठे हुए? हमने इतने सारे लोगों को रोज रोज सुना है, इतना सारा भक्तामर पर चल रहा है, क्या है ऐसा? आपका कुछ किसी को अगर जवाब देना है तो इस तरह से हैंड करेंगे और उनको अनम्यूट किया जाए ताकि कुछ हमें व्यूज समझ में आए, आपके विचार कि आप क्या क्या सुनना चाहते हैं, क्या है आपके दिमाग में। कोई अगर आंसर देना चाहे तो अच्छा लगेगा, हमें भी थोड़ा आगे बढ़ने में हेल्प मिलेगी। या चैट बॉक्स में भी डाल सकते हैं। हाँ बोलिए, अनम्यूट करें इनको। मम्मा बोल रहे हैं। तो आज हम इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि हम भक्तांबर के जो श्लोक है उनका भाव जान सकें और कैसे हमें प्रेयर करनी चाहिए, उस समय क्या भाव आने चाहिए और इनका मीनिंग क्या है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। आगे ये भी बोलना चाह रहे हैं कुछ? अनुभव जी नहीं, मैंने नैना पारिक जी को अनम्यूट किया है। हाँ कर बोलिए। तो जो भक्तामर और ये सब ने सब सीखा है, हाँ। तो उसको हमें कैसे आगे करना है और अच्छा। आगे फॉलो भी कैसे करना है, सही तरीके से कैसे प्रोनाउंस करना है, और फिर आगे ऐसे दूसरों को भी कैसे हम सिखाएंगे। अगर हम अच्छा। खुद को सही तरीका नहीं आता है तो हम आगे भी गलत सिखाते जाते हैं। तो ये तरीका सही है कि हम खुद सही सीखते हैं। वेरी गुड। अच्छा, और बताइए। विवेक जी को अनम्यूट कर रहे हैं। विवेक जी आपको अनम्यूट किया जा रहा है।
ओके, मनोज दागा जी आपको अनम्यूट कर रहे हैं। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आप लोग सबको कि आपने ये पहल की है। थैंक यू वेरी मच। मैं और मेरी पत्नी प्रज्ञा पहली बार ये भक्तावर सीख रहे हैं और हमारा उद्देश्य ये है कि हम न सिर्फ इनका उच्चारण समझे, इनके अर्थों को समझे, ताकि जब हम भक्तावर करें हम प्रभु के साथ कुछ पलों के साथ उनको अपने अंदर महसूस करना है। यही हमारा उद्देश्य है कि हम प्रभु को अपने साथ महसूस करो। हमें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए, कोई बेनिफिट नहीं चाहिए, उनको याद करना ही सबसे बड़ा बेनिफिट और सबसे बड़ी हैप्पीनेस होगी हमारी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। आगे। हाँ, प्रकाश जी का हाथ है, प्रकाश जी को अनम्यूट कर रहे हैं। Jai Jinendra to everyone. We started learning Bhaktamar. So our kids also started learning. They are also part of kids Bhaktamar class. So slowly we started learning the meanings as well. But to hear the perspective and whatever we are doing, whether we are in the right path to correct ourselves, I think it may benefit from that time. Thank you. गुड। आगे। हाँ, बोलिए बोलिए। श्रुति। मैं चंदा दीदी को अनम्यूट कर रही हूँ। ये जैन सेंटर सेक्रामेंटो से हैं। हाँ। जय जिनेंद्र एवरीवन। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि मैं इसीलिए ये क्लास अटेंड की है क्योंकि बार बार पढ़ के हम ये रूटीन बना लेते हैं और कई बार बैक ऑफ द माइंड चलता है, हमें पता नहीं लगता। तो क्लास अटेंड करने से हमारे भाव दोबारा रिपीट होंगे। जब हम पढ़ेंगे, जैसे कहते हैं ना, बार बार दोहराने से वो चीज पक्की होती है। इसीलिए मैंने ज्वाइन किया ताकि मेरे भाव दोबारा रिपीट हों। करेक्ट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। और थैंक यू। विवेक जी को अनम्यूट कर। हाँ। जब से ये भक्तांबर की क्लासेस लगना शुरू हुई है, इसमें इतना आनंद आता है। मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि इस आनंद को कभी खत्म ना हो, इसलिए सुबह से शाम तक की सारी क्लास अटेंड करता हूं। अब इससे क्या होगा ये तो भगवान जाने, लेकिन आनंद बहुत आता है। बहुत अच्छा, मेरा तो यही उद्देश्य। विवेक जी तो सुबह भी हमारी क्लास में रोज रहते हैं, बहुत अच्छे से क्लास कर रहे हैं वो। रोज सुबह मेरी क्लास चलती है 6:30 बजे, तो काफी लोग इसमें हैं जो क्लास में रहते हैं। संडे को हमारा स्पेशल क्लास बच्चों का रहता है 1 बजे, और सुबह 6:30 बजे बराबर 2 महीने से क्लास चल रहा है। उसमें काफी लोग बहुत अच्छे से एंटरटेन करते हैं और काफी अच्छा लग रहा है उनको। चलिए आगे। ठीक है, आप सबके विचार बहुत अच्छे लगे और मैं इन्हीं जवाब की उम्मीद कर रही थी कि शायद कहीं मुझे मेरी जो भावना है वो कहीं मिल जाए। और सही में आप सभी ने बहुत अच्छे से अपने अपने आप को प्रस्तुत किया है। चलें हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे हम। तो भक्तामर हमें सीखना है, पठन पाठन हमको करना है। भक्तामर की 4 लाइनें एक बार हम सुन लेते हैं रिद्धि मंत्र के साथ में, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न भी आने वाले हैं। भक्तामरं प्रणतमौलिमणि प्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोहितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगानाम् आलम्बनं भवजले पततां जनानाम्। सुना आपने
भक्तामर भक्तामर स्तोत्र सभी को तो जानकारी है कि जैन धर्म की अनोखी विधा बहुत से आचार्यों के द्वारा समय समय पर अनेक स्तोत्रों की श्लोकों की रचना हुई है। भक्तामर जो है जैन परंपरा में सर्वोत्कृष्ट रचना मानी। यहाँ तक कि पुराण में वर्णन मिलता है कि ये पंचम काल के जीवों को मोक्ष का मार्ग बताने में, उद्धार करने में सबसे बड़ी भूमिका भक्तामर निभाएगा, ऐसा कहते हैं। हमारे जीवन में परिस्थितियां हैं, समस्याएं हैं, और उन समस्याओं से पार होने के लिए समय समय पर हमारे आचार्यों के द्वारा अनेकों मंत्रों की, अनेकों श्लोकों की, अनेक स्तोत्रों की रचना की गई। सिर्फ हमारे जैन समाज में ही नहीं, वैदिक परंपरा में, इस्लाम परंपरा में, बौद्ध में, ईसाई में, सभी में कुछ ना कुछ मंत्र यंत्र का समावेश है, सभी में है। वो समस्याएं जो हैं, अब वो समस्याएं चाहे हमने खुद ने अपने उत्पन्न की हो, चाहे एनवायरनमेंट से मिली हो, चाहे मेंटली हो, चाहे इमोशनली हो, और चाहे जो कहते हैं कि हमारे ग्रह नक्षत्र बराबर नहीं चल रहे हैं, यानी मनुष्यकृत, ग्रहकृत, परिस्थिति जन्य और मानसिक रूप से कोई भी समस्या हो, जीवन है तो समस्या है, और समस्या के बिना जीवन का कोई मतलब भी नहीं है। आप दूर दूर तक एक बार आंख बंद करके सोचो कि क्या कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसके पास कोई समस्या ना हो। कहीं पर भी सोच लेना, दूर दूर तक, अरे बहुत खुश है, बहुत खुश है, सब कितने अच्छे हैं, मेरा तो दुख कितना है, मेरे को इतनी परेशानियां। जिस दिन मुझे मेरा मेरा दिखने लगेगा, उसको थोड़ा सा उल्टा कर दिया जाए, जब सामने वाले के देखते हैं तो ऐसा लगता है कि मेरे तो तकलीफें उसके सामने कुछ भी नहीं है। हम बहुत सुखी हैं कि इस चार दीवार के अंदर बैठे हैं, दोनों टाइम का भोजन कर रहे हैं, बच्चे साथ में हैं, परिवार पास में है, और सुखपूर्वक कम से कम हम सब मिलकर यहाँ भगवान की स्तुति तो कर रहे हैं। आगे और स्टेप बढ़ती है तो पता नहीं कितने लोग जिनके पास तो शेल्टर भी नहीं। तो समस्याएं हैं तो जीवन है, और जो समस्याओं से जूझेगा वो आगे बढ़ेगा। तो भक्तामर श्लोकों में ऐसा क्या है, इसको हम मानतुंगाचार्य जी ने लिखा है। राजा हर्षवर्धन और राजा भोज के समय की कहानी है। दोनों भी अपनी अपनी जगह सही हैं। 30th सेंचुरी बोलते हैं, कई लोग 7th बोलते हैं। तो हम उद्देश्य के ऊपर जाएं कि 44 श्लोक हैं या 48 हैं या 52 हैं या 48 हैं या 44। ओवरऑल हमारा उद्देश्य है कि उन श्लोकों में क्या है, ऐसी क्या रचना है भक्तामर श्लोक की कि जो हमारे मन को इतना ज्यादा प्रभावित कर रही है। तो भक्तामर क्या है? व्हाट इज भक्तामर? भक्तामर एक भक्ति प्रधान रचना है, भावों की पराकाष्ठा है, और मीरा के समान भक्ति है, तुलसी के समान, कबीर के समान। इतने सुंदर भावों से उसको प्रस्तुत किया गया है कि जो भी उसे पढ़े, उसमें सिर्फ 2nd श्लोक में आता है कि प्रथमम जिनेन्द्रम। बाकी जगह तो ऐसा कहीं नहीं आता कि भक्तामर में सिर्फ आदिनाथ भगवान की स्तुति। सभी भगवानों को भक्तामर श्लोक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। क्यों भक्तामर हमको पढ़ना है? पहला हमने बताया भक्तामर क्या, कि भक्ति प्रधान रचना है, बसंती का छंद में लिखा गया है। बसंती का छंद की विशेषता ये है कि वो करुणा प्रधान है। दूसरा 14 मात्राएं हैं उसमें, लघु 7 और गुरु 7 सम है, 7 में डिवाइड, ना कोई कम
ना कोई ज्यादा, ना कोई छोटा, ना कोई बड़ा। वो छंद की विशेषता है। छंद की विशेषता यह है कि वो करुणा प्रधान है, कंपैशन। फिर क्या है? भक्ति है, है, विरह है उस छंद में, जो अंदर तक हृदय के जाती है बात हमारे। ठीक है, अब क्यों पढ़ना है भक्तामर? बाकी मंत्र क्या प्रभावी नहीं है? बाकी मंत्रों में भी वही ताकत है, पर हमने उनके ऊपर, इतने सारे लोगों ने मिलकर उनके ऊपर रिसर्च नहीं किया। हमारे आचार्यों को तो पता है, मुनियों को पता है कि एक ही भाव भी पढ़ेंगे, कल्याण मंदिर भी पढ़ेंगे, वत्सघरम भी पढ़ेंगे, लोगस्य भी पढ़ेंगे, और सब में सिर्फ भक्ति की पराकाष्ठा है। पर इतने सारे लोगों ने जब देखा कि भक्तामर के रिजल्ट्स ऐसे मिल रहे, बहुत सारी एनवायरमेंट में एनर्जी इकट्ठी हो गई, इतनी शुभ वर्गणाएं पूरे ब्रह्मांड में भक्तामर के मंत्रों की पड़ गई, क्योंकि उन श्लोकों में स्वर और व्यंजन की रचना इतनी सुंदर तरीके से की गई है कि जब हम उनको पढ़ते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे भाव अंदर तक, हम इमोशनली उनसे जुड़ने का प्रयास करते हैं। When one should read भक्तामर, कब पढ़ना चाहिए? इसके लिए अब ये प्रश्न आता है यहाँ कि हमें कब पढ़ना चाहिए। कब पढ़ने के लिए मेरे पास इसके लिए ये है कि भक्ति में डूबे हुए व्यक्ति के लिए समय की सीमा नहीं होती है ना, लिमिटेशंस नहीं है। आपके मन में रग रग में अगर भक्तामर भरा हुआ है, एनी टाइम आप चैंट कर सकते हैं, कभी भी किसी भी समय, सिर्फ और सिर्फ अशुद्धि अवस्था को छोड़ आप कभी भी पढ़ सकते हैं। अब हाउ शुड रीड भक्तामर? वैन तो कब होगा? हाउ, कैसे पढ़ना है? तो मन वचन काय की शुद्धि पूर्वक, एकाग्रता पूर्वक। हम आगे एक छोटा सा प्रैक्टिकल भी करने वाले हैं, उसके बाद आपको समझेगा कि हमें क्यों, कैसे और कब पढ़ना चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम। अब आएगा कि हमें संस्कृत में ही क्यों पढ़ना चाहिए। अब यहाँ पर बात आती है हमारी लैंग्वेज की, भाषा की। हम बहुत सारी भाषाएं हैं पूरे वर्ल्ड में, बहुत सारी, संस्कृत में ही क्यों? भक्तामर भी बहुत सारी लैंग्वेज में लिखा गया है, इंग्लिश है, संस्कृत है, हिंदी है। अब संस्कृत के साथ 3 और को जोड़ दो, पाली को भी जोड़ो, प्राकृत को भी जोड़ो। ये 3 लैंग्वेज को अगर हम फिर से जीवित कर दें तो शायद जो भारत विश्व गुरु बनने का सपना देख रहा है वो पूरा हो सकता है। पर हमने इनको डेडलाइन पर ला लिया है, ये लैंग्वेज की हमने इनको डेडलाइन पर ले गए हैं। अभी छोटा सा एक प्रैक्टिकल आएगा हमारे साथ में, सिर्फ 2 ही शब्द आएंगे मेरे, नमो और नमो। शायद हो सकता है इसके पहले इसका एक प्रैक्टिकल अपन ने किया। अब इतने क्लास होते हैं तो किसने किया ये नहीं पता मुझे, पर अपन ये एक प्रैक्टिकल करते हैं। बंद करेंगे, मन को शांत कर लेंगे, बिल्कुल चित्त को बिल्कुल अपने शब्द के ऊपर एकाग्र कर लेना। नमो की चैंटिंग 10 बार करेंगे और उसके बाद नमो की चैंटिंग करेंगे। चालू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। नमो 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 नमो। बहुत ध्यान से करना, क्वेश्चन बनेगा इसमें। फिर से आगे हम नमो बोलते हैं। अब नमो 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 नमो
मन को शांत करें। कोई बताना चाहेगा कि नमो और नमो में क्या फर्क हमने देखा है? नमो और नमो में हमें क्या फर्क महसूस हुआ? अगर कोई बोलता है तो आप अनम्यूट करें उनको, और नहीं तो फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। मैं ही जवाब दूंगी, मैं ही सवाल करूंगी, क्योंकि हम आमने सामने नहीं बैठे हैं। आमने सामने होकर भी हम बहुत दूर हैं, है ना? तो अगर आपके पास जवाब है तो आप बताइए, ऐसे हाथ ऊपर करके। अपर्णा जी अनम्यूट करेंगे, अगर कोई जवाब देना चाहे तो आंसर दे। दीदी सुशीला जी का हैंड रेज्ड मुझे दिख रहा है, तो आई एम गोना अनम्यूट कर। करेंगे बिल्कुल। मंजू दीदी को भी अनम्यूट। सुशीला जी आप बोलिए। हाँ जी, मैं ये बोल रही थी, जैसे नमो मेरे मुंह से निकलता है और नमो मेरे नाक से निकलता है, दोनों के स्वर में ये फर्क आ रहा है। अच्छा, ओके। और कोई बताएगा? हाँ, नमो जब हम बोलते हैं नमो, तो ये टंग ऐसे स्ट्रेट जाती है, और जब हम रमो बोलते हैं संस्कृत में, तो वो अपर पैलेट को हिट करती है, टंग ऊपर। हाँ, वेरी तो गुड। जो हमारे 84 मेरिडियन पॉइंट स्टिमुलेट होते हैं, तो जो वो न्यूरो ट्रांसमिशन फ्लूइड्स सिक्रीट होना चालू हो जाती है ब्रेन से। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा? चलिए, तो मंजू जी ने काफी हद तक बहुत अच्छी बात बताई है, और सुशीला जी ने भी बोला है। हमारे उच्चारण के ऊपर बात आ जाती है, पूरी की पूरी बातें। जैसे कई लोगों ने बोला कि हमें उच्चारण सीखना है, हमें उसके भाव सीखना है। तो उच्चारण, जब हम, ये टंग जो है ये हमारा ब्रह्म केंद्र है। ये अब टंग को, जब हमारे पास कोई बच्चे ऐसे आते हैं जिनका स्पीच क्लियर नहीं होता, तो बहुत सारी एक्सरसाइज करवाई जाती है टंग की। जैसे टंग ये है सपोज हमारा, तो हम उसको अंदर बोलेंगे खींचना है अंदर, जिसको खेचरी मुद्रा कहा जाता है। टंग को अंदर खींचना, टंग को ऊपर पैलेट पर लेकर जाकर टच करना। तो आप जब संस्कृत में एक ही लाइन पढ़ के देखते हैं हम, भक्ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, भक्ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा, भक्ताम्र प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। क्या हुआ? हम अभी पूरी रात बैठकर हिंदी में जितने वार्तालाप करना है कर सकते हैं। संस्कृत जब आप पढ़ने जाएंगे तो आप थकने लगते हैं, उसको एनर्जी की जरूरत होती है, बहुत ताकत लगती है। तो जब हम संस्कृत में उच्चारण करते हैं तो हमारे टंग के अंदर जो है निगेटिव आयंस हैं, और जो हमारा ऊपर का पैलेट है उसमें पॉजिटिव आयन है। तो जब नेगेटिव आयन और पॉजिटिव आयन मिलते हैं तो एनर्जी क्या होती है? क्रिएट होती है, एनर्जी वाइब्रेट होती है, और वो एनर्जी हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को एक्टिवेट करती है। ये तो साइंस की बात हो गई, ये साइंस ऐसा कह रहा है। इसलिए मैंने कहा कि 3 लैंग्वेज ऐसी हैं जिनको फिर से अगर हमने जीवंत किया, जिनको फिर से अगर उठाया, तो हम विश्व गुरु बनने में आने वाली पीढ़ी को इतना सुंदर तैयार कर सकते हैं। पर हमने वो लैंग्वेज को डेडलाइन पर ले लिया। अब लैंग्वेज की अगर बात आती है, भाषा की अगर बात आती है, तो संस्कृत जिसको अपने ज्ञान को ऊंचाइयों तक ले जाना है, वो संस्कृत में उच्चारण करे। जिसको अपने भावों के ऊपर काम करना है, कि जिसके मन में कसाई ही कसाई भरी है, राग द्वेष के परिणाम ही चल रहे हैं, क्रोध के ही परिणाम चल रहे हैं, कंटिन्यू नेगेटिविटी भरी हुई है, तो वो लाइनें बहुत सुंदर हैं। रही सदा सत्य संगे उन्हीं का, ध्यान उन्हीं का नित्य रहे,
उन्हीं जैसी छरिया में यह चित्त सदा अनुरेक्त रहे। नहीं सताऊं किसी जीव को, झूठ कभी नहीं कहा करूं, पर धन वनिता कर न लुभाऊं, संतोषामृत पिया करूं। इसके सिर्फ आपने शब्द पढ़े और वो आपके अंदर तक उतर गए कि मैं कभी किसी के प्रति कोई भी परिणाम गलत ना रखूं, हमेशा समता के भाव में रहूं। तो जिनको इन विचारों को दूर करना है वो हिंदी के भक्तामर से जुड़ जाएं, हिंदी की स्तुतियों से जुड़ जाएं। लग रहा है कि निगेटिविटी आ रही है, लग रहा है कि मेरे बुरे विचार हो रहे हैं, क्रोध ही क्रोध आ रहा है, रागद्वेष ही रागद्वेष है, कसाई ही कसाई भरी हुई है, तो उनको इस पर वर्क करना चाहिए। जिनको लगता है कि मुझे ज्ञान को, मेरा मेमोरी पावर लॉस हो रहा है, मुझे बुद्धि नहीं अच्छी चल रही है, मेरा मेमोरी पावर मेरे को स्ट्रांग करना है, तो उन्होंने संस्कृत के श्लोकों को पढ़ना चाहिए। तीसरी बात आती है लैंग्वेज की। एक और मैंने जो चिंतन जितना मेरा समझ में आया कि भाषाएं बहुत बड़ी आपके व्यक्तित्व को बनाने में भूमिका अदा करती हैं। इंग्लिश अगर आपको आती है तो बहुत बहुत पावरफुल है वो व्यक्ति, उसका एकदम औहदा ऊंचा हो जाएगा, नहीं वो एक अलग इमेज बन जाएगी उसकी, नहीं इंग्लिश जानता है ये तो, और उसका एक अलग ही स्टैंडर्ड बन जाएगा। मगर आप थोड़ा सा एक चिंतन करके देखना कि इंग्लिश जो भाषा है, अंग्रेजी जो है, वो आपको भोग विलास की ओर ले जाती है, स्टैंडर्ड तो मेंटेन करती है मगर भोग विलासता की तरफ, भौतिकता के जीवन की ओर ले जाती है। संस्कृत जो जाती है, पाली जो जाती है, प्राकृत जो जाती है, वो अध्यात्म से जुड़ती है। हिंदी जब भाषा से हम जुड़ते हैं तो हम हृदय की गहराइयों से जुड़ जाते हैं। तो ये भाषाओं का स्थान है। जब हम संस्कृत में पढ़ते हैं तब हमें समझ में आया कि क्या होता है, तो सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। जैसे जैसे वो बच्चे का आत्मविश्वास बढ़ने जाता है, उसका मेमोरी पावर स्ट्रांग होने लगता है, और मेमोरी पावर स्ट्रांग होने से वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं रहता, उसका डर दूर हो जाता है और वो राइट पाथ को पकड़ने लगता है। 1 साल तक होते होते उस बच्चे में ये चारों गुण अपने आप आ जाते हैं। तो हमने संस्कृत का इम्पोर्टेंस पढ़ा, हमने देखा कि संस्कृत में क्यों, अब आती है स्वर धारा की बात। चूंकि प्रेक्षा ध्यान से हम जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में प्रवेश किए बिना हम उसके बिना रह ही नहीं पाते। तो स्वर धारा का मतलब है एक्सटेंशन ऑफ आवर थॉट प्रोसेस, अपने विचारों को गति देना, उसका आयाम करना, विस्तार देना, श्वास की गति के साथ अपने चित्त की गति को जोड़ना, श्वास की गति के साथ बीज मंत्रों को जोड़ना, श्वास की गति के साथ नवकार को जोड़ना, श्वास की गति के साथ और क्या करना, श्वास की गति, मंत्र और बीज मंत्र, श्लोक, नवकार मंत्र तो बहुत दूर चला गया। पहले मन को जोड़ना, जो घोड़े की लगाम जिसको बोलते हैं ना कि ये तो पूरे पूरे वर्ल्ड की यात्रा कर लेता 1 सेकंड में, मन ऐसा है, उसको श्वास के साथ जोड़ दें, जिसको हम बोलते हैं कि प्राणायाम। ठीक है, अब चलते हैं हम भक्तामर के प्रथम श्लोक की तरफ, आगे बढ़ते हैं। अभी आपने सुना था भक्तामर का पहला श्लोक, है ना? भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतिकं दलित पापितमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा
वालम्बनम भवजले पतितां जनाना। पहला ही लाइन का अक्षर बार बार रिपीट जब हम करते हैं तो कुछ लोगों को मैं चाहूंगी कि वो पढ़ के बताएंगे, तो हमारा थोड़ा सा हमें समझ में आएगा कि हाँ, जिनको नहीं आता है उनको, जिनको आते हैं वो तो उनको तो पक्का है, जिनको नहीं आते हैं, जो सुनने का प्रयास कर रहे हैं और समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम सीखने का प्रयास करेंगे फिर से। भक्तामर, हॉट के ऊपर ध्यान दें। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाणा। अब इसका जो म है मुद्योतकम का, वो ऊपर बिंदी बन जाता है अनुस्वार, मगर हम बोलचाल में उद्योतकम ही बोलते हैं। उद्योत करने वाले भगवान शब्द के चरण जो हैं वो उद्योत करने वाले हैं, उस पाद युग को प्रणाम किया गया है। अभी आएगा जब मीनिंग, तब आपको समझ में आएगा। उद्योतिकम दलित पापित मूवितानम सम्यक प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनाना। कोई बताएगा, सुनाएगा हमको बोल के? अगर कोई बोलना चाहे तो एक श्लोक जो नए नए हैं उनसे पूछना चाहूंगी, एक ही जो भी बोलना चाहे वो बोल के बताएंगे। कोई हैंड रेस, ये इंदिरा जी हैंड रेस कर रही हैं, सो आई एम गोना अनम्यूट हर। इंदिरा जी आपको क्लिक करना होगा। बोलिए। भक्तामर प्रणत मौलिमणि प्रभाण मुद्योतकं दलित पापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिन पाद युगम युगादा वालंबनम भवजले पतितां जनाना। बहुत अच्छा। जहां जहां प्र की मात्रा आती है, उस प्र की मात्रा का आधा पा पहले वाले शब्द को जुड़ जाता है। भक्तामर प्रणत मौली मणिक प्रभाणा आया, आधा पा पहले वाले शब्द को जुड़ जाएगा। दूसरा अनुस्वार की बात आती है। बहुत ज्यादा हमने बहुत ज्यादा नहीं इसके बारे में जानकारी, पर फिर भी जितना भी गुरुओं ने बताया उसके अनुसार बताती हूँ कि अनुस्वार दो प्रकार के होते हैं। एक म का अनुस्वार होता है, अगर आप पूरा भक्तामर एक ही अनुस्वार को लेकर पढ़ रहे हैं तो उसके अनुसार पढ़ेंगे, अम का ही अनुस्वार लेंगे। और अगर न, जो मराठी लोग हैं वो करते हैं अंग का, जैसे रंग तरंग, तो त थ द ध के बाद जो अनुस्वार आता है वो वाला, प फ ब भा के बाद जो अनुस्वार आता है वो माँ का अनुस्वार आता है ना। तो अंतिम अनुस्वार है, पूरा भक्तामर देखा जाए तो अनुस्वार से भरा हुआ है। अब इसमें इस चीज का ध्यान रखेंगे, जिन्होंने भी बोला है उसको प्र शब्द को आदि मात्रा को पहले वाले शब्द से जोड़ना है, ठीक है। अब इसके भाव आते हैं कि आचार्य मानतुंगाचार्य जी कह रहे हैं कि हे आदिनाथ भगवान, इंद्रों के इंद्र देव जो आपके चरणों में आपकी भक्ति करने जब आते हैं तो बहुत सज धज के बड़े ठाट बाट से पूजा करने आते हैं। ऐसे नहीं आते इंद्रदेव, और वो कम ज्ञानी भी नहीं होते हैं, बहुत ज्ञान होता है उनको। तो कहते हैं कि जब इंद्र
आदिनाथ भगवान के चरणों में अपना मस्तक झुकाते हैं इंद्र देवता, तो उनके मुकुट की जो मणियां हैं, जो डायमंड है, वो भगवान के नख का स्पर्श पाकर इतना प्रकाश फैल जाता है कि चारों ओर जितना अंधेरा था वो सब दूर हो जाता है। ऐसे आदिनाथ भगवान को हम नमन करते हैं। जो भी उनके चरणों में भक्ति पूर्वक अपना मस्तक झुकाते हैं, उनके जन्मों जन्मों के पाप पल भर में नष्ट हो जाते हैं। तो हमारी पीढ़ी जो है ना आजकल की, वो बहुत 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 ज्यादा होशियार है, हमसे 100 टाइम्स आगे है। वो कहते हैं कि मैडम डायमंड तो अपने आप में प्रकाशित है, अपने आप में लाइटिंग है उसमें, आप कौन से डायमंड की लाइट की बात कर रही हैं? दूसरा पक्ष सोचो आप क्या है उसका। उसके माध्यम से भक्तामर में आचार्य मानतुंगाचार्य जी ने क्या इंगित किया है। फिर 2 क्वेश्चन बनते हैं, 2 क्या और भी बना सकते हैं आप, कि चरणों को ही नमन क्यों किया है। शरीर के उत्तम अंग में तो मस्तिष्क सबसे ऊपर है और वो उत्तम अंग माना गया है, और चरण तो नीचे हैं, चरणों को ही क्यों नमन किया है। 2 प्रश्न मेरे सामने आते हैं कि डायमंड तो अपने आप में प्रकाशित है, उससे किसकी बात हो रही है, और चरणों को ही क्यों नमन किया गया है। आज तो प्रथा घुटने तक की थी, घुटने से धूप दे रहे हैं ऐसे, अब यहाँ से हो गया दिल से दिल की बात, उस दिन में ऐसे किया जाएगा, मतलब सिर से सिर टकराया जाएगा। हमारी आने वाली पीढ़ी यही होने वाली। चरणों को नमन क्यों है? हमारी भारतीय संस्कृति हमें झुकना सिखाती है, हमें विनम्रता सिखाती है। जो जमीन से है जुड़ा हुआ उसको ही नमन किया जाता है। जो बीज है वही फल बन रहा है। हम फल के ऊपर देखते हैं, फल को तोड़ते हैं, मगर वृक्ष के बीज की तरफ ध्यान नहीं जाता है। तो चरणों को प्राणिपात, ऐसे पाद युग को नमन किया है जो युग के आदि में भी आलम्बन बने, युग के मध्य में भी आलम्बन बने, और पतिताम जनानाम, पतितों की सेवा करने वाले, पतितों को राह दिखाने वाले, मनुष्यों को राह दिखाने वाले, जिन्होंने कृषि, असी मसी, वाणिज्य, शिल्प, कला और समाज को एक अच्छी व्यवस्था दी, ऐसे आदिनाथ भगवान के चरणों में हम भक्ति पूर्वक नमन करते हैं। उस पाद युग को प्रणाम किया है जो युग के आरंभ में सहारा बने, जिन्होंने आलंबन दिया। कब दिया? जब हमारे समय, उस समय में कल्प वृक्ष थे, कल्प वृक्ष के माध्यम से लोगों की इच्छाएं पूरी की जाती थी। तब जब वृक्ष लोप होने लगे, तब आदिनाथ भगवान ने अपने अंतर्दृष्टि से, अंतर ज्ञान से, केवल ज्ञान से जाना, और साइंस ऑफ लिविंग से लेकर आर्ट ऑफ लिविंग से लेकर आर्ट ऑफ डाइंग तक की यात्रा करना हमें सिखाया। 4 भाग के उन्होंने 25 तक की उम्र तक बच्चे को पढ़ना है, ऊंचाइयों तक जाना है। भक्तामर के श्लोक में आपको सब मिलेगा। ये 50 वर्ष की आयु तक संसार चलाना है, 75 वर्ष की आयु तक अपने वृद्धावस्था में साधना करनी, और अंत में वैराग्य को धारण करना भी सिखाया। और संधारा जैसी क्रिया को, संलेखना जैसी क्रिया को देकर उन्होंने संपूर्ण जीवन शैली का परिचय दिया, हमको एक समाज को व्यवस्था दी। तो क्या बच्चों में हम इस तरह से बोल सकते हैं? जब बच्चे कहते हैं तो बच्चों को पूछ सकते हैं, आप ऐसे कौन से अच्छे काम करने वाले हैं कि आप भी आदिनाथ के समान पूजनीय बन जाएंगे? तो बच्चे बोलते हैं, मैडम हम ये करेंगे, मैडम हम ये काम करेंगे, मैडम हम ये काम करेंगे। अच्छा, बढ़िया बात है, बहुत अच्छी बात है। तब लगता है कि क्या भक्तामर ये मनोवैज्ञानिक रूप से आपको कितना संबल प्रदान कर रहे हैं। साइकोलॉजिकल दृष्टि से देखो, जहां बच्चा टूटता है, जहां बच्चे का डर चला रहता है, जहां बच्चा भयभीत है, वहां बच्चा इन श्लोकों के माध्यम से ऊपर उठ रहा है। क्यों उठ रहा है? क्योंकि उसको ये भावनाएं बताई गई कि ऐसे आदिनाथ भगवान जो जगह जगह सुबह से उठकर निकल जाते थे
और गांव-गांव जाकर लोगों को संदेश देते थे कृषि यीशु मसीह का। आपके जीवन में आप कैसे अच्छे कार्य करने वाले? दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा? पहला तो मैंने बोला चरण युग को, और दूसरा ये बताया, हाँ डायमंड। हाँ, अब आती है असली बात, वो हमारे लिए आती है। डायमंड क्यों प्रकाशित है, डायमंड के माध्यम से क्या होना। तो जब स्वर्ग के देवी देवता आते हैं, जब पूरे साज धज कर आते हैं और पूजा करने आते हैं, और जैसे ही उस वितरागता को देखते हैं तो मोह की बेड़ियां इतने जल्दी नहीं टूटती हैं। कसाय और राग देश की बेड़ियां इतने जल्दी नहीं टूटती हैं। ये बंधन मोह के जो हैं ऐसे जल्दी नहीं टूट जाते। जैसे ही उस वितराग छवि को देखते हैं तो कहते यहाँ तो सब कुछ ऊपर से नीचे तक लदे हुए हैं, तो भी खाली के खाली, वहां तो वितरागता है, तो भी इतनी शांत सौम्य मूर्त दिख रही है। वहीं उनकी मोह की बेड़ियां टूट जाती हैं, मोह का विलय हो जाता है, अहंकार का विलय हो जाता है। अगले वाले श्लोक में अहम शब्द आएगा, अहम के साथ अपी का प्रयोग हो गया, इसलिए वो विनम्रतावाचक बन गया। अहम के साथ अगर अकेला अहम होता तो अहंकार आ जाता। तो कितना सुंदर श्लोक है, क्या सिखा रहा है कि अहंकार को नष्ट करना है, अगर विनम्रता को लाना है, जीवन में ऊंचाइयों तक जाना है और स्पीच क्लियर करना है, तो प्रथम श्लोक की आराधना की जाए। और हमारे गुरुओं ने, ऋषि मुनियों ने लिखा है कि सब विघ्न बाधाओं को दूर करना है तो प्रथम श्लोक का चिंतन किया जाए। अब पहला श्लोक कैसे स्पीच क्लियर करने के लिए काम करता है कि पहली ही लाइन, मैंने बीच में भी वेबिनार में ये शब्द बार बार रिपीट किया था कि जिन बच्चों का स्पीच क्लियर नहीं है, आगे और भी श्लोक आएंगे जो आपको स्पीच क्लियर करने के लिए मिलेंगे। अभी तक आपने भक्तामर इस श्लोक के पढ़ने से ये होता है, इस श्लोक के पढ़ने से ये फायदा होगा, इस श्लोक के पढ़ने से संसार की आकांक्षाएं पूर्ति होंगी। अब आप थोड़ा सा इसको ज्ञान की तरफ ले जाना, भावों की तरफ ले जाना, तो आपको लगेगा कि इन श्लोकों में बहुत बड़ा रहस्य है। हमारे बाबूजी जब भक्तामर पढ़ते थे, तो मेरी नई नई शादी हुई जब हम आए, तो वो रोज पूरे घर में चक्कर लगाकर पढ़ते थे भक्तामर। और फिर शाम को जब हम उनके पास बैठकर हमारी चर्चा होती थी चाय पीते पीते, तो वो कहते थे कि अनीता, इन श्लोकों में इतने इतने रहस्य पड़े हैं, इतने रहस्य हैं जिनको संस्कृत समझ में नहीं आती है ना, जिस दिन जिनको समझ में आ जाए तो पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। बोले इतना 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 राज है इनमें। और मैं हमेशा उनसे ये बोलती कि बाबूजी प्लीज हमें सिखाइए ना, आप बाबूजी आप मुझे बताइए। तो हाँ कभी बताएंगे, हाँ कभी बताएंगे, ऐसा बोलते थे। और शायद मेरा समय ही नहीं आया और वो चले गए संसार से। तो दुख लगता है कि बहुत अच्छी चीज हमने उनके पास से खो दी। वो क्या बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो क्या है, ऐसे श्लोकों को अब हम चिंतन करेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि भक्तामर श्लोक में क्या है। अब इसका आता है रिद्धि मंत्र और मंत्र। रिद्धि मंत्र आता है कि ओम ह्रीम अर्हम नमो जीर्णाणाम। ऐसे रिद्धिधारी मुनिवर जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है उन्हें मेरा नमन। जो श्वेतांबर परंपरा में आप उनको लब्धिधारी गुरु कहते हैं, हम रिद्धिधारी मुनिवर कहते हैं। लब्धि रिद्धि ये एक ही है। तो जो रिद्धियां हैं, ऐसे मुनियों की तपस्या के द्वारा जो उनको रिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं, उन रिद्धिधारी मुनिवरों को हम नमन करते हैं जिन्हें जिन संज्ञा प्राप्त है। इस रिद्धि का मतलब यह है। दूसरा उसका मंत्र आता है ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम रूम क्रोम ओम ह्रीम नमः। फिर से पढ़ेंगे ओम राम ह्रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम ह्रीम नमः। रिद्धि है
ओम ह्रीं अर्हं नमो अरिहन्ताणं नमो जीर्णाणां राम ह्रीं रूं रौं र अस्या उषा अप्रतिचक्रे पट विचक्राय झोम झोम नमः। तो क्या बोल रहे हैं? आदिनाथ भगवान के चरणों में हम नमन कैसे करते हैं? सम्यक प्रकार से। सम्यक का मतलब है मन, वचन और काय की शुद्धि पूर्वक नमन करना, समता को धारण करना। अगर हम पढ़ते हैं, इतने दिनों से हम ये क्लास अटेंड कर रहे हैं, इतने दिनों से हम भक्तामर पढ़ रहे हैं, इतने दिनों से हमारे चारों तरफ स्पिरिचुअल वर्क ही चल रहा है, तो कभी हमने इस पर विचार किया कि इसके करने से हमारे मन पर क्या असर पड़ा? जो आज हमारे सामने सिचुएशन आई हुई है, उससे बाहर निकलने का कोई माध्यम मिला आपको? कुछ सोचा है आपने? इसके 2 महीने के इतने सारे क्लास में सबसे ज्यादा तो डर बना हुआ है ना? सबसे ज्यादा डर है ना, भय है। अब तो कोरोना के साथ ही जीना है, जब तक जिंदगी तब तक कोरोना साथ में है। पर मुझे ये पूछना है कि ये 2 महीने के अंदर में मेरे मन के अंदर क्या परिवर्तन आया? अगर परिवर्तन की यात्रा चालू हुई है तो हमारी सही ट्रैक चल रही है, और परिवर्तन की यात्रा नहीं चालू हुई तो हम शून्य पर ही हैं। अब चाहे हम योग की क्लास करें, चाहे हम ध्यान की क्लास करें, चाहे हम भक्तामर करें, चाहे हम पूजा करें, अगर हमारे मन में उस वीतराग छवि को देखकर समता का भाव नहीं आया, अगर हमारे मन की कसाई शांत नहीं हुई, अगर हमारा क्रोध शांत नहीं हुआ, अगर हमारे मन में धैर्य नहीं आया, पेशेंस नहीं आया, तो सब जीरो पर पहुंच जाएंगे। इसलिए जितना भी समय हमें ये सब चीजों को मिला है, तो रात को ये सोचने का समय है कि अब हमारी यात्रा सही अंदर की होना चाहिए। जिनको रात हुई है उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है, और जिनका दिन हुआ है उनको अपनी दिनचर्या चलाने के लिए भी बहुत अच्छा समय है। दोनों को भी थिंकिंग करनी है। रात को सोते समय बिल्कुल शांत भाव, और दिन भर कार्य करते हुए भी शांत भाव। चलिए, तो ये हमारा आज का क्लास था। आगे की क्लास के लिए हमारे सामने शायद अपर्णा जी किनको इनवाइट करना चाहती हैं, कहानी के लिए, फिर रिद्धि मंत्र के लिए, तो आप उनसे सुनेंगे। हमने पहले श्लोक के लिए बताया, उनकी चारों विशेषताएं बताई कि वे भगवान के चरण कमल कैसे हैं, उद्योत करने वाले, दूसरा आलंबन देने वाले, तीसरा पाप का नाश करने वाला, चौथा अगर बोला जाए व्यवहार जीवन में भावों को अगर जोड़ना है तो अहंकार को दूर करने के लिए, बच्चों में अच्छे गुण विकसित करने के लिए, स्पीच क्लियर करने के लिए, और अगर लोग ये पूछें कि मैडम बहुत परेशानियां चल रही हैं और हम क्या करें, तो मैं बोलूंगी पहले श्लोक से आदिनाथ भगवान की भक्ति करो। वैसे 10 श्लोक जो हैं वो 10 क्या 20 श्लोक तक युगल युगल में गए हैं, पर आज हमारे पास समय कम था, पहले भूमिका बनाना थी तो हमने एक लिया। कल हम 2 श्लोक फिर से दोनों श्लोकों को जोड़ते हुए बताएंगे कि ये 2-2 श्लोक कैसे पढ़ रहे हैं। पहले 2 श्लोक में स्तुति का संकल्प किया गया है, पहले 2 श्लोक में स्तुति का संकल्प है, ठीक है। तो आगे आप चारू जी को इनवाइट कर दें, अपर्णा जी, ताकि वो अपनी कहानी बताएं, और सभी लोग कहानी सुनने के लिए लालायित हैं। अगर आखिरी में समय रहा तो 5-10 मिनट का एक ध्यान करवाएंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो नहीं मच। तो कल हम ठीक। तो चारू जी इज अनम्यूटेड। सभी को जय जिनेंद्र।
सभी को मेरा जय जिनेंद्र। अनीता दीदी आपने बहुत अच्छे से समझाया, बहुत अच्छा लगा आपको आज देखकर। बहुत दिनों बाद मैं नागपुर में आपसे मिली थी, बहुत अच्छा लग रहा है आपको देख करके आज। और आप लोगों की ही ये सब प्रेरणा और आप लोगों का ही आशीर्वाद है जो मैं आज यहाँ पर बैठी हुई हूँ आप लोग के साथ और बता रही हूँ। तो आपने जो ये बताया अभी श्लोक के बारे में, तो इसकी स्टोरी एक बार मैं शेयर कर देती हूँ, फिर मैं इसके और जो मेरे केसेस हैं वो मैं बाद में बताती हूँ। पहले स्टोरी में शेयर कर देती हूँ। कहते हैं कि कितना ही कुशल कलाकार क्यों ना हो, कितना ही कुशल कलाकार क्यों ना हो, थोड़ी सी भी असावधानी यदि होती है तो वो अपनी प्रतिष्ठा से हाथ धो बैठता है हमेशा के लिए। और कितना ही लक्ष्य साधक क्यों ना हो, कितना ही उसका लक्ष्य जितना भी साधने वाला हो, तीरंदाज हो या निशानेबाज हो, जरा सा ध्यान यदि हटा उसका तो उसका निशाना चूक जाता है। उसी प्रकार सभी अपनी अपनी कला में माहिर होते हैं। उसी प्रकार एक चोर था, सुदत्त चोर था, वो भी कलाकार था। और किसमें कलाकार था? वो अपनी चोरी की कला में कलाकार था कि वो चोरी इतने कायदे से करता था कि कोई भी उसको पकड़ नहीं पाता था। यहाँ तक कि राजा के दरबार में भी वो चोरी करता था। तो बहुत वर्षों से वो चोरी कर रहा था, लेकिन कभी पकड़ में नहीं आता था। तो कभी कभी होता है कि कुछ ना कुछ अनहोनी होती है, वो तो सामने आ जाती है, या हमारे कार्मिक अकाउंट्स से होते हैं तो वो सामने आते हैं, किसी ना किसी चीज का निमित्त बन जाते हैं। तो उस दिन वो चोर पकड़ में आ गया सिपाहियों के, राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने उससे कहा कि तुम आखिर पकड़ में आ ही गए, इतने वर्षों तक तुमने हमें परेशान किया, इतने वर्षों तक चोरी की और तुम पकड़ में आ गए, और तुमने राजकोष से इतना सारा धन चुराया है, और तुम्हारे शरीर पर मैं देख रहा हूँ एक फटी हुई लंगोट भी ठीक से नहीं है। तुम्हारी दशा देख कर के लगता है कि तुमने ये चोरी की है, तो ये धन कहाँ रखा है तुमने? अब चोर तो पहले से ही घबराया हुआ था। उसने सोचा कि अब मैं क्या करूं। तो कहते हैं जैसे धर्मात्मा यदि कष्ट में आता है तो बहुत सारे देवी देवता आ जाते हैं उसको बचाने के लिए। तो वैसे ही वो चोर जब कष्ट में आया तो मिथ्या और मायाचारी भी आ जाती है उसको बचाने के लिए। तो उसके दिमाग में तुरंत आया, उसने हेमदत्त जी श्रेष्ठी का नाम ले लिया, जो नगर के बहुत जाने माने सेठ थे, उनका नाम लिया कि हेमदत्त श्रेष्ठी। उसके अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। उन्होंने कहा मैंने उनका अपना सारा धन चोरी का उनके यहाँ ही रखा हुआ है। तो राजा भी चकित हो गया कि हेमदत्त श्रेष्ठी क्या इसका धन रखा है। तो राजा ने कहा ठीक है, बुलाया जाए उसे। तो हेमदत्त श्रेष्ठी जी जैन श्रावक थे, वो आए दरबार में। राजा ने बुलाया तो वो आए और उन्होंने पूछा क्या हुआ राजन, आपने मुझे क्यों बुलाया? तो राजा ने कहा कि ये चोर है और इसने कहा है कि मैं अपना सारा चोरी किया हुआ धन आपके घर में रखता हूँ, तो आप अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं? अब वो तो देख करके उसको चकित रह गए कि ये चोर, इसको तो मैंने पहली बार देखा है, ये कैसे मेरा नाम ले रहा है। तो उन्होंने कहा, बहुत ही शांत भाव से वो बोले कि हे राजन, मैंने तो इसकी शक्ल ही पहली बार देखी, मैंने तो उसका फेस ही पहली बार देखा है, तो मैं इसे कैसे जान सकता हूँ? और मैं स्वयं, आप जानते हैं कि मैं स्वयं इतना धार्मिक हूँ, और मैं जो जिन शासन का व्यक्ति होता है, मानने वाला, सम्यक दृष्टि होता है, वो एक एक कदम फूक करके रखता है कि मुझसे कहीं भी कोई असावधानी ना हो, कोई भी गलती ना हो, हिंसा ना हो। तो मैं इस चोर को कैसे शरण दे सकता हूँ, या मैं इतना जघन्य अपराध कैसे कर सकता हूँ? तो राजा भी बहुत धार्मिक थे, उज्जैनी नगरी के राजा थे। उनका दिल थोड़ा सा पसीजा सेठ की बात सुन करके। उन्होंने जैसे वो विश्वास करने लगे सेठ पर, उनको जब चोर को दिखाई दिया कि ये राजा पर विश्वास कर लेंगे, तो चोर ने तुरंत अपना पासा फेंका। उसने बोला कि हे राजन, ये झूठ बोल रहे हैं, जो सेठ है हेमदत्त श्रेष्ठी, ये झूठ बोल रहे हैं। और उसने तुरंत अपनी सत्यता को साबित करने के लिए हेमदत्त श्रेष्ठी जी से बोला कि हे सेठ जी, आपने तो मुझे इतना बड़ा धोखा दिया है, आपके पास तो इतना धन है, यदि आपको कोई सजा भी हो जाएगी तो आपका परिवार तो जन्मों जन्मों तक खा सकता है, पहन सकता है, और मुझ गरीब पर आप इतना मुझ गरीब के साथ इतना अन्याय क्यों कर रहे हैं आप, कि आप मुझे फंसा रहे हैं? और मैंने तो उस परमात्मा, मतलब उसमें परमात्मा का भी नाम ले लिया। उसने कहा मैं जो परमात्मा हर समय हर तरफ देखते हैं, मैंने उनको भी नहीं देखा और मैंने अपना शरीर आपको बेच दिया था।
मैं आपने जो भी कहा मैंने वो इस शरीर से किया। मतलब उसने इतनी धर्म में लपेट करके वो बातें कही कि राजा को उस चोर पर विश्वास हो गया कि ये सच बोल रहा है। तो राजा ने वो हेमदत्त श्रेष्ठी को बिल्कुल भी समय नहीं दिया कि अब वो कुछ बोले, क्योंकि उसने इतनी चाशनी में पाक करके, इतनी धर्म के में लपेट करके, परमात्मा के करके ऐसे बातें करी। तो राजा ने तुरंत वो हेमदत्त श्रेष्ठी को अपने सैनिकों से कहा कि इनको ले जाओ और 8 मील दूर यहाँ से जंगल है, उसमें एक सूखा अंधेरा कुआं है, उसमें फेंक करके आओ इनको, क्योंकि उन्होंने अधर्म किया है इतना बड़ा, उन्होंने चोर को अपने यहाँ स्थान दिया है, मैं इनकी कोई भी बात सुनना नहीं चाहता। तो हेमदत्त श्रेष्ठी कुछ बोल ही नहीं पाए। वो बेचारे तो देख रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो अवाक थे इन सब चीजों से। तो तुरंत उनके जो भी सिपाही थे वो ले जा करके उन्हें अंधेरे कुएं में तुरंत हाथ पैर बांध करके फेंक आए। अब हेमदत्त श्रेष्ठी उस कुएं में पड़े पड़े सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, हे प्रभु ये कैसी कर्मों की सजा मुझे। यहाँ पर आप देखिए कि वो ये नहीं सोच रहे हैं, उनके मन में चोर के प्रति गलत भाव नहीं आ रहे हैं कि उसने मेरे साथ बुरा किया। वो क्योंकि जैन थे और सच्चे सम्यक दृष्टि थे, उन्होंने तुरंत ये सोचा कि हे प्रभु ये मेरे कर्मों की कैसी सजा मुझे मिल रही है। उन्होंने 3 दिन तक उसमें उसी अंधेरे कुएं में बैठ करके और जो है उसी दशा में 3 दिन 3 रात बीत गए। और उन्होंने सोचा कि ये अब मेरे शरीर की दुर्गति तो जो हो रही है वो हो रही है, शायद ये मेरे कर्मों के कारण ही हो रही है, लेकिन मैं अपनी आत्मा को तो पवित्र कर सकता हूँ। तो तुरंत उनके सामने उन्होंने आंखें बंद की और परमात्मा के आदिनाथ प्रभु के ध्यान में लीन हो गए। उनको क्योंकि भक्तामर जी पर बहुत विश्वास था, अटूट श्रद्धा थी, तो उन्होंने भक्तामर के युगल काव्य लिए, पहला और दूसरा काव्य लिया उन्होंने, और उसी को उन्होंने पढ़ना स्टार्ट किया। भक्ति के साथ, रिद्धि मंत्र और मंत्रों के साथ उन्होंने उसी को पढ़ना शुरू किया कि हे भगवान। उन्होंने ये नहीं कहा कि हे भगवान आप मुझे निकाल लो यहाँ से, जैसे अभी अनीता दीदी ने अपने उसमें बोला ये बात कि सब लोग बहुत चतुर हैं आजकल कि बस ये काव्य पढ़े और ऐसा हो जाए, ये काव्य पढ़े और वैसा हो जाए, लोग तुरंत दवा ढूंढ रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा नहीं किया कि मुझे यहाँ से निकल जाऊं इसलिए मैं पढ़ूं। उन्होंने सोचा कि मेरे जो कर्म है वो कट जाए, इसलिए मैं भगवान ये आपकी स्तुति कर रहा हूँ, आपकी भक्ति कर रहा हूँ। उन्होंने ये सोच करके उन्होंने भक्ति करनी स्टार्ट कर दी। उसके बाद जब भक्ति करने स्टार्ट की, थोड़ी देर तक उन्होंने भक्ति की, तो एक बहुत तेज रोशनी से उनकी आंखें खुली, एकदम तेज रोशनी वहां पर हुई और उनकी आंखें खुली। उनके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा, वहां एक बहुत सुंदर देवी उनके सामने खड़ी हुई थी। तो उन्होंने पूछा आप कौन है देवी, आप यहाँ पर क्यों आई हैं? तो उन्होंने कहा, जो देवी थी उन्होंने कहा मैं शासन देवी विजया हूँ। उन्होंने कहा आप शासन देवी विजया है, मैंने तो आपको नहीं बुलाया। उन्होंने क्योंकि भक्ति की थी, उन्होंने तो नहीं सोचा था कोई देवी देवता यहाँ पर आ जाए। उन्होंने कहा मैंने तो आपको नहीं बुलाया, आप यहाँ क्यों आई हैं? उन्होंने कहा मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न होकर आई हूँ, उसके वशीभूत होकर के आई हूँ यहाँ पर। और उन्होंने कहा क्या मांगना चाहते हो? उन्होंने कुछ भी नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं तो भक्ति कर रहा था। तो ये उनके भाव थे कि मैं भक्ति कर रहा था, आप यहाँ पर आई हैं, क्यों आई हैं? तो उन देवी ने स्वयं उनको तुरंत सारे बंधनों से मुक्त किया, उन्हें कुएं से निकाला और एक बहुत सुंदर रत्नमयी सिंहासन पर उन्हें पूरे राज सम्मान के साथ विराजित किया। अब वो वहां पर विराजित थे, तो उसके बाद तुरंत इधर जो राज्य में क्या चल रहा था, राज्य में जब 3 दिन हो गए, क्योंकि वो जाने माने श्रेष्ठ ही थे, तो राज्य में 3 दिन हो गए इधर, तो ये जो राज्य के कर्मचारी थे थोड़े से जो इस टाइप के थे कि हम थोड़ा सा धन ऐंठ लें उनसे कि उनको मुक्त करा लेंगे, जानते थे कि श्रेष्ठ के पास बहुत धन है। तो उन्होंने सोचा कि शायद हम राजा से दगा कर जाएं, राजा को धोखा दे करके उन श्रेष्ठी को बंधन से मुक्त कराने का लालच दे दें। चल के 4-5 लोगों ने ये योजना बनाई कि हम उनको बंधन से मुक्त करने का लालच दे करके और उनसे थोड़ा सा धन ऐंठ लेंगे, उनसे धन ले लेंगे उसके बदले में। तो जब वो वहां पर जाते हैं इस लालच से कि हम उनको मुक्त करेंगे, तो देखते ही उनकी तो आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि ये क्या, ये तो राज सिंहासन पर बैठे हुए थे, हमने इन्हें खुद से हाथ पैर बांध करके और कुएं में फेंक दिया था, ये कैसे राज सिंहासन पर आ गए? उन्होंने उनसे पूछा, जब वो तो पूछा क्या, वो तो भाग गए वहां से, देख के डर गए वो इतना, वो भाग गए यहाँ से। और उन्होंने तुरंत राजा के सामने डरते डरते बताया, राजन ऐसी ऐसी बात है, वहां तो वो जो हेमदत्त श्रेष्ठी को आपने भेजा था, फिकवाया था कुएं में, वो तो स्वयं राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं।
तो राजन तुरंत स्वयं अपनी सेना के साथ वहां पर गए, बहुत से नगर के लोग सब गए देखने उनको। जब उन्होंने देखा वहां उनके ठाट बाट देखे, उन्होंने पूछा उनसे, तो जो हेमदत्त श्रेष्ठी थे उन्होंने तो सम्यक भाव से बताया कि मैंने तो सिर्फ अपने जिनदेव की आराधना की थी, भक्ति की थी, उसका ही प्रताप मुझे मिला है। और तो राजन ने उनसे क्षमा मांगने लगे। उन्होंने कहा, राजन नहीं, आपको कोई भी गलती का अपराध बोध होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये मेरे ही कर्मों का दंड था जो मुझे मिला, और ये भी मेरी भक्ति का ही फल था जो मुझे मिला। तो हम सभी अपने अपने कर्मों के दंड भोगते हैं और अपनी भक्ति से ही उन दंडों को, उन कर्मों को काट सकते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो भी है आज वो अपनी ही वजह से हैं। किसी और को उसका श्रेय नहीं देना चाहिए कि वो उसकी वजह से हम इस मुसीबत में आ गए, इस कष्ट में आ गए, इस बीमारी में आ गए। आप यदि सम्यक समान भाव से ये चीज सोचे कि हम जो भी हैं, हमारे साथ जो भी कष्ट बीमारियां हैं वो हमारी वजह से ही है, हम अपने दुखों का कारण स्वयं हैं, तो हम स्वयं ही उसे दूर करने की कोशिश करेंगे। और जब भक्ति से ये भक्तामल जी पढ़ते हैं तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण मिलता है हमें। ये है इसकी स्टोरी की जंगल में मंगल। जय जितेंद्र। अनीता दीदी, आप बताइए कि स्टोरी कैसी लगी? आप लोग को तो बहुत अच्छे से पता है, आप लोग को बहुत मैं सुनना चाहती हूँ आपसे एक बार। बहुत बढ़िया, और आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया, अच्छे से बताया, बहुत अच्छी लगी स्टोरी भी। अब नेहा जी आने वाले हैं रिद्धि मंत्रों के साथ और मंत्रों के साथ, तो उनको अपर्णा। हाँ जी, नेहा दीदी को अनम्यूट कर दिया। जय जिनेंद्र। अपने आज पढ़ा फर्स्ट नंबर का श्लोक और उसका मीनिंग। तो फर्स्ट नंबर के श्लोक में ये बता रहे हैं कि हे भगवान, आप जो बहुरूपी समुद्र में जो जीव गिर रहे थे उनको आलम्बन देने वाले हैं, ऐसे आदिनाथ भगवान को हम स्तुति कर रहे हैं। तो उसका रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। जिनाणम मतलब हम जो ऐसे बोलते हैं जय जिनेंद्र। जिनेंद्र मीन्स जिन्होंने अपने इंद्रियों पे विजय प्राप्त कर लिया है। और ऐसे कौन होते हैं? अपने अरहंत भगवान, जो हम नमो अरिहंताणम बोलते हैं, उनका दूसरा नाम है 64 रिद्धि के धारी, ऐसे जिनेंद्र भगवान। तो ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनाणम का मीनिंग है हम जिनेंद्र भगवान को नमोस्तु कर रहे हैं। फर्स्ट नंबर के श्लोक का मंत्र है ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा। इसमें कुछ बीजाक्षर होते हैं, जैसे क्रीम, क्लीम, ब्लूम। वो बीजाक्षर जैसे अभी आज अनीता दी ने बताया कि वो बीजाक्षर का भी अपनी बॉडी में प्रभाव होता है। ऐसे हर एक बीजाक्षर का कोई मीनिंग हो ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो बीजाक्षर अपनी बॉडी में जब कुछ वाइब्रेशंस ऐसे करते हैं जिससे हमारे कार्य सिद्ध होते हैं। और उसका अर्घ भी देखे तो ओम ह्रीम विश्व विघ्न हराय, मतलब हमारे या आपके ही नहीं, मतलब पूरे विश्व में जो विघ्न है वो सब दूर हो जाए, ऐसी हम प्रेयर कर रहे हैं भगवान से। फिर आते हैं दूसरे नंबर के श्लोक पे, तो ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। ओहि जिनाणम मतलब अवधि ज्ञान के धारी। अपने पहले बात हुई थी 64 अलग अलग रिद्धियां होती है, बट वो 64 रिद्धियां जब आ जाती है तब वो अरहंत भगवान कहलाते हैं। पर उसके पहले किसी मुनिराज को 1, 2 या ज्यादा रिद्धियां भी हो सकती है। फर्स्ट 18 श्लोक में जो अपनी बुद्धि रिद्धि के धारी होते हैं उन मुनिवरों को नमोस्तु करते हैं। तो ये दूसरे नंबर के श्लोक की जो रिद्धि है ओम ह्रीम अर्हम नमो ओहि जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा, मतलब हम अवधि ज्ञानधारी जो मुनि महाराज है उनको नमोस्तु करते हैं। और अपने तीर्थंकर भगवान होते हैं, उनको जन्म से ही वो 3 ज्ञान के धारी होते हैं, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। तो तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तब हम ऐसे नहीं बोलते कि बालक का जन्म हो, ऐसा ही बोला जाता है। शांतिनाथ भगवान
जो बालक रूप में अवतार हुए, इसीलिए तो उनके 5 कल्याणक मनाए जाते हैं। फिर दूसरे नंबर श्लोक का मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ब्लूम नमः सकलार्थ सिद्धिनम। सकलार्थ सिद्धिनम मतलब सब कुछ जो अच्छा है वो सब हमें सिद्धि, मतलब सिद्धि के धारी है, उनको हम नमोस्तु करते हैं। फिर उसका अर्घ है ओम ह्रीं नाना अमर संस्तुताय सकल रोग हराय क्लीं महाबीजाक्षर सहिताय हृदय स्थिताय शिवशब्दाय जिनेन्द्राय अर्घम निरपामिति स्वाहा। मतलब देखो उसके अर्घ मंत्र और रीति तीनों समझने का प्रयत्न करो कि वो सिर्फ ऐसा ही नहीं बोल रहा है कि एक रोग दूर हो जाए या 2 रोग हो जाए, वो बोलता है सारे रोग दूर हो जाए हमारे, ऐसे हम प्रेयर करते हैं। तो ऐसे हम आगे जैसे जैसे अनिता दी श्लोक का मीनिंग समझाएंगे, ऐसे आगे आगे रीति अपन लेंगे। और पुरुषार्थ तो करना ही करना है। एक स्टोरी मैं बताती हूँ, जैसे अभी चारू जी ने स्टोरी बताई। मेरी फ्रेंड से बात हुई, उसका नाम दिव्या है। वो 2018 में चाइना से वापस आ रही थी इंडिया। तो समहाउ उसका जो गेट नंबर था बोर्डिंग पास में, वो गेट नंबर चेंज हो गया। चाइना में ऐसा नहीं है कि इंग्लिश उतना ज्यादा प्रचलन नहीं है, वहां पे ज्यादातर चाइनीज लैंग्वेज ही यूज होती है। तो जैसे अपन इंटरनेशनल लैंग्वेज एयरपोर्ट पे जाते हैं और इंग्लिश में लिखा हुआ होता है, वहां पे चाइनीज में लिखा हुआ था, तो शी कैन नॉट अंडरस्टैंड कि वो क्या है कैसे। बट वहां बैठ के वो सिर्फ नमोकार मंत्र का चैंटिंग करते। शी इज सिंधी, शी इज नॉट जैन, बट मेरी फ्रेंड है तो मैंने उसको नमोकार मंत्र उसको सिखाया हो। उसको आज भी मीनिंग नहीं आता है। उसने क्या किया, बस नमोकार मंत्र का चैंटिंग वो कंटिन्यू करती रही। तो 10-15 मिनट के बाद वहां पे कोई बंदा आया जो हिंदी जानता था। उसने कहा कि आपको कहाँ जाना है, तो उसने उसका बोर्डिंग पास बताया। तो उसने कहा वो बंदे ने कि आपका गेट नंबर चेंज हो गया है और फ्लाइट का टाइम भी हो गया है, आप चलिए मेरे साथ, मैं उसी फ्लाइट में जाने वाला हूँ। तो उसको चाइनीज तो आती नहीं थी और ये हिंदी भाषी था, तो श्री ट्रस्ट की चलो ये हिंदी बंदा है तो सही जगह पे ले जाएगा। तो वो उसके साथ साथ चली गई, गेट पे पहुंच गई जिस गेट से फ्लाइट चलने वाली थी। फिर उसने वो फ्लाइट में मतलब लाइन में लग गई। उसने आगे पीछे देखा और फ्लाइट में भी उसने बहुत प्रयत्न किया कि वो बंदा शायद उसको मिल जाए कि उसको थैंक यू बोल पाए, बट शी कैन नॉट फाइंड दैट पर्सन। और वो सही सलामत इंडिया पहुंच गई। तो मेरा कहने का अर्थ है कि आप निष्काम भाव से भक्ति करो और पुरुषार्थ तो करना ही पड़ेगा। वाओ दीदी, that was amazing story, and मैंने तो खुद सुनी उनके मुंह से, उस दिन बात करी हमने इकट्ठे। तो थैंक यू फॉर शेयरिंग। मंजू दीदी। हाँ, तो देखो आपने इतने अच्छे से फर्स्ट श्लोका का हर चीज आपको मिल गया, आपको अर्थ भी मिल गया उसका। अनीता ने इतने अच्छे तरीके से बताया, आपने कहानी भी सुन ली, आपको रिद्धि मंत्र भी एक्सप्लेन हो गया, यानी आपका परफेक्ट हो गया। अर्घ के बारे में भी आपको बताया। और इसका इंग्लिश में अर्थ ऐसा है कि ओ लॉर्ड वी आर बाउइंग डाउन, वी आर बाउइंग डाउन। कौन बाउ डाउन कर रहे हैं? द इंद्राज विद देयर जेम क्लैड स्टोन्स, उनके जो क्राउन है, दे आर बाउइंग डाउन एट द फीट ऑफ लॉर्ड आदिनाथ। And from the feet of Adinath, the rays are coming. The rays are touching the gemstones of the crown. And those rays, when they get reflected, they are enhancing the beauty of the gems. So by the rays of the thumb's nail, the diamonds and all gems are getting glittered. So they say that we all are sinking in the ocean of worldly pleasures. What? We all of us in this world, somebody is doing this, that. We all are sinking in the ocean of worldly pleasures, and it is Lord who you can save us from sinking.
in this ocean of worldly pleasure. So the first shloka erases the darkness, the sins. The sins disappear in our life. It dissolves all the turbulences in our life, all the destruction of turbulences, of the hindrances. All these are erased automatically when you chant first shloka with Riddhi mantra, when you are deeply engrossed in chanting first shloka. They say the transmigration, of death, life, this cycle of birth and life, from this we can come out. The soul gets liberated by chanting shlokas of Bhaktamara. And you should write when Anita is explaining, and you should write. See, I was listening, but I was writing, and in English, in Hindi, Om Rim Riddhi Mantra, you can also scribble. So when you are reading plus writing, all these, they get engraved on your mind. And I have written thousands and thousands of times from 2007. I always keep on writing. I have how many registers in which all shlokas in English, their meaning, their riddhi, mantra, their stories, all are written. Because when you write, they are inscribed in your mind. So you will never forget. And then your power, the subconscious mind starts working. And it is like 9 times stronger than your conscious mind. Whatever you will think, it will happen. Think, you will just think Aparna should call me, and you see that Aparna has called. You don't even have to say. So the telepathy starts working. I'm not joking. Whatever I am saying is through experience. So this is first shloka, and I will chant the mantra and riddhi, and you all also chant with me. Om Reem Sham Shreem Shrum Shraham Sam Tha 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 Saraswati Bhagavati Vidya Prasadam Kurkru Swaha. Sorry, I just chanted riddhi of 6 shloka. I'll just Om Reem Om Ram Reem Rom Shrim Klim Blum Krom Om Reem Namah Swaha. सब बोलिए मेरे साथ. ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा. ओम राम रीम रूम श्रीम क्लीम ब्लूम क्रोम ओम रीम नमः स्वाहा. And riddhi. Om रीम अरम नमो अरिहंताड़म नमो जीर्णानाम राम रीम रूम र अस्यावसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा. बोलिए सब, मन में बोलो, जोर से बोलो. ओम रीम अरम नमो अरिहंताणम नमो जीर्णानाम राम रीम रूम रोम र अस्यावसा अप्रतिचक्रे फट विचक्राय झ्रोम झ्रोम नमः स्वाहा. कोई इसका टेस्टिमनी बताएगा? मैंने इतने बार इस फर्स्ट श्लोका का टेस्टिमनी बताया, किसी को याद है क्या? देखूं हम लोग के 20 दिन की क्लास कुछ इफेक्टिव रही क्या? फर्स्ट श्लोका का टेस्ट खुद ही बताना चाहूंगी, एंड फिर उसके बाद चारू इज रेजिंग हर हैंड, तो फिर चारू भी बताएंगी. मेरी खुद की फ्रेंड नॉन जैन है ना, सरदार है वो लोग, एंड उसकी लाइफ में हेल्थ इश्यूज भी, उसके हस्बैंड का डाइवोर्स के टॉपिक भी चल रहा था घर में, एंड वो छोड़ के भी चला गया, एंड मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन. एंड जब वो मेरे पास आई, वो कहती कि मैं तो, आपको पता है धर्म में कोई है नहीं मेरे को इंटरेस्ट, पर मैं बुरा कुछ नहीं बोलती हूँ किसी को, बट मैं खुद कुछ करती नहीं हूँ. बट नाउ आई एम एट अ पॉइंट कि आई हैव गिवन अप एवरीथिंग. मैं कुछ, मेरे हाथ खड़े हैं, मैं कुछ नहीं कर सकती, जो आप बोलो तो करना. पर उसने इतने सारे इश्यूज बता दिए, मुझे लगा इसको शुरू कहाँ से करवाऊं. तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि उसको बोला फर्स्ट श्लोका करना.
हाँ, पहले फर्स्ट श्लोक का भक्तामृत स्तोत्र का बोला एंड फिर उसका मीनिंग समझा दिया उसको, और उसने इतने फेथ के साथ करा। और फिर उसी दिन उसने मेरे ऑफिस में क्यूब में नवकार मंत्र की भी फोटो पड़ी है, तो उसने वो कहा कि ये भी क्या है, तो मैंने वो भी बताया, ये हमारा मूल मंत्र है, नवकार महामंत्र। तो फिर वो मुझे कहते हैं इसकी ये भी समझा दो, तो उसने 108 टाइम्स की वो चैंटिंग शुरू कर दी अपने आप। मैंने बोला कि लोग माला करते हैं, बट आई थॉट एज अ बिगिनर यू कैन डू इट 9 टाइम्स और मे बी 27 टाइम्स। तो मेरे को अगले दिन बोलती है मैंने 27 टाइम्स फर्स्ट श्लोक एंड 108 टाइम्स नवकार मंत्र का स्टार्ट कर दिया। एंड लाइक लिटरली 4th-5th डे उसका हस्बैंड वापस आ गया घर पे, एंड साथ ही मतलब अब लाइक शी इज सुपर हैप्पी। एंड और उसने श्लोक कभी माइनस नहीं किया, वो श्लोक्स ऐड करती जा रही है। जनवरी में स्टार्ट किया था और देखो अब मई हो गया। कल भी उसका मैसेज आया, अब आई थिंक 9th एंड 20th श्लोक पे कर रही है, तो कहती मेरे 10 डेज हो गए। सो उसने फर्स्ट श्लोक स्टार्ट कर दिया, 12th श्लोक स्टार्ट कर दिया, 9th ऐसे लाइक 20th मल्टीपल श्लोक्स कर रही है। हाँ, एंड दैट्स द अदर मेजर थिंग वाज कि उसके हर मील में नॉनवेज रहता था पहले, एंड माय कंडीशन वाज कि इट हैज टू बी यू हैव टू बी वेजिटेरियन। तो एक दिन पहले उसने किसी पंडित को भी कुछ दिखाया होगा, उन्होंने भी कहा कि वेजिटेरियन होना है, तो उस दिन से लेके आज तक शी इज बीन वेजिटेरियन सिंस जनवरी, प्योर वेजिटेरियन। उसका हस्बैंड खाता है और 2 ही जने हैं घर में, नहीं तो इंसान कह सकता है कि 2 जने हैं, मुश्किल है, हम 2 जनों का खाना बनाते हैं, दिस इज दैट। नो, वो बनाती है उसके हस्बैंड के लिए बेशक, बट शी इज प्योरली वेजिटेरियन। ओके, सो अंजू, बार ये प्रश्न आया है यहाँ कि कई बार रिद्धि मंत्र पहले पढ़ते हैं, कई बार मंत्र पहले पढ़ते हैं, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि पहले रिद्धि पढ़ना है या पहले मंत्र पढ़ना है, कुछ आप ही बताओ ना अनीता, आप बताइए। रिद्धि मंत्र और मंत्र वाला तुम बताओ इसको, क्योंकि मैं बच्चों को सिर्फ श्लोक पढ़ाती हूँ। रिद्धि मंत्र और मंत्र तुम बताओ उनको। देखो, मंत्र पहले पढ़ते हैं फिर रिद्धि पढ़ते हैं, पर मैं फिर भी कहूंगी कि सीक्वेंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती है जितने के भाव जो भी रहते हैं। कई लोग तो ऐसे करते हैं, एक बार श्लोक पढ़ा फिर मंत्र पढ़ा फिर रिद्धि पढ़ा, फिर ऐसे 9 टाइम्स पूरा करते हैं। कई लोग श्लोक 9 टाइम्स कर लिया, फिर 108 टाइम्स मंत्र पढ़ा, फिर 108 टाइम्स रिद्धि पढ़ा। और कई लोग ज्वाइन पढ़ लेते हैं, रिद्धि और मंत्र टुगेदर पूरा पढ़ा फिर सेकंड टाइम पढ़ा, फिर क्या। तो ओवरऑल हमें पर राइट वे है श्लोक 9 टाइम्स पढ़ लिया, 108 टाइम्स हाँ मंत्र और फिर 108 टाइम्स रिद्धि। ठीक है। और मैं एक चीज और कहूंगी अनीता, कि जब आप अभी क्लास ले रहे हो तो सब लोग वो श्लोक, साधना हो जाएगी कि वो श्लोक लिखें भी, और उस दिन वो उस श्लोक को 9 बार पढ़ें, उसका रिद्धि मंत्र 108 बार पढ़ें। तो उनका ऐसे साल भर में जब तक क्लास चलेगी तो उनकी खुद की साधना हो जाएगी, तो उनके अंदर वो खुद ट्रेंड हो जाएंगे। ये मेरी इच्छा थी। करेक्ट। हाँ, नहीं, हम है ना, आज हमारी भूमिका थी, आज हमने पहले एक आधार बनाया, बेस बनाया कि भक्तामर क्या है, क्यों है, कैसे है, कब है ये। अब कल से जब हमारे श्लोक चालू होंगे तो मेरी ये है, जैसे मेरे बच्चों का दोपहर का 1 बजे जो क्लास चल रहा है उसमें हमने बच्चों को यही बोला है कि 1 साल तक मेरा ये क्लास चलेगा, और 1 साल के अंदर जितने भी बच्चे 25, 50, 100 जो भी बच्चे जुड़ रहे हैं, वो बच्चे पूरे के पूरे 48 श्लोक करेंगे, और फिर हम उन बच्चों का एक बहुत सुंदर प्रोग्राम करेंगे ऐसे वेबिनार के ऊपर कि बच्चे सब पूरे के पूरे बच्चे पढ़ रहे हैं। ऐसे ही ये जो हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं ना, तो आज हम ये संकल्प करें, कोशिश करना है हमें। बाकी तो देखो पर्सनल कुछ प्रॉब्लम चलते हैं, वो बात की बात है, पर हम हर क्लास में जुड़ने का प्रयास करें और इस भाव से जुड़े कि हमें अब अपने अंदर की परिवर्तन की यात्रा शुरू करनी है। कुछ मिले या नहीं मिले, 3 चीजें मिलना चाहिए। 3 चीजें कौन सी? चलो सब लोग हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे। सभी लोग बोलेंगे, देखो एक का हो रहा है रात, एक जगह हो रहा है दिन, है ना? तो हम प्रार्थना करते हैं कि हमारा आज का दिन और हमारी आज की रात मंगलमय हो,
आनंदमय हो, शांतिमय हो। ठीक है, फिर पूरे जगत के जीवों के लिए भी प्रार्थना करेंगे, जगत के सभी जीव सुखी रहें, सबके घर में आनंद की वर्षा हो, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबको बुद्धि की प्राप्ति हो, सबको आरोग्य की प्राप्ति हो। एक संकल्प करें जाते, मैं चैतन्यमय हूँ, मैं ज्ञानमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ। मेरे अंदर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का, अनंत ज्ञान का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। ओम शांति शांति शांति। ओम अरहम। इस क्लास के माध्यम से आराम का ज्ञान ध्यान से क्लोज कर दो ना। कल करेंगे। आज हमने जो भी सीखा है उसका कंक्लूजन सिर्फ हम 4 बातों में करें, सिर्फ 4 पॉइंट्स को लेकर कि हमें अपने अंदर के डायमंड को और अधिक प्रकाशित करना है। दूसरा, हमें क्या करना है, क्या करना है बताइए, जल्दी बताइए। 4 बातें क्या सीखेगी आज के श्लोक से? विनम्रता को अपने जीवन में लाना है। तीसरी बात, अहंकार को गलाना है। बहुत कठिन है ये चीजें, बहुत आसानी से बोल रही है दीदी, मगर आ जाता है कहीं कहीं भाव अहंकार का, तो वो हटाने का प्रयास करना है। कोशिश ये करनी है कि आज के दिन, सिर्फ और आज के दिन मैं सबके साथ मैत्री रखूंगी, आज मैं निंदा नहीं करूंगी, आज मैं झूठ नहीं बोलूंगी, सिर्फ आज और आज मैं सबको प्रयास करूंगी, सिर्फ आज और आज मैं प्रामाणिकता से हर कार्य करूंगी। 7 दिन के 7 कार्य ऐसे बना लो, फिर देखो कि कैसे जल्दी हमारे जीवन में परिवर्तन आता है। नियम ये छोटे छोटे से पालन कर, यही बच्चों को नियम बताती हूँ, यही हम पालन करें तो शायद हमारे भावों में परिवर्तन, तभी हमारा भक्तामर एक और अलग मोड़ लेकर जाएगा और हम मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से, भावनात्मक रूप से जो टूट चुके हैं उनको जोड़ने का प्रयास करेंगे। इंसान के शारीरिक बीमारियां कोई बड़ी बीमारी नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। शरीर मिला है, आने वाला है। मानसिक बीमारी है, वो आएगी, उसको दवा देकर ठीक कर देंगे। शारीरिक को दवा देकर डॉक्टर ठीक करेगा। भावनात्मक रूप से आप कहाँ जाएंगे ठीक होने के? गुरुओं की शरण में जाते हैं, आचार्यों की शरण में जाते हैं, मंत्रों की शरण लेते हैं, श्लोकों की शरण लेते हैं। हम यहाँ कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं बैठे, हमसे विद्वान आचार्य हैं जिन्होंने बहुत अच्छी तरह से दिया है। हमने तो सिर्फ उनके अंदर की छोटी छोटी सी बातों को लेकर आपके सामने इस दृष्टिकोण से भक्तामर को रखने का प्रयास किया, जिससे बच्चों को रखती हूँ, ताकि हम अपने आप को परिवर्तित कर सकें। जो भी समस्या हमारे जीवन में आई है उसको पेशेंस के साथ, मेरे कर्म ही मुझे सता रहे हैं, बस इस भाव से। दूसरा, हम ज्यादातर किसी की गलत बातों में, हम बच्चों को संकल्प करवाते हैं तो बहुत अच्छी प्रार्थना करवाते हैं, कभी हम वो प्रार्थना भी करेंगे। हर दिन कभी कभी अलग अलग प्रार्थनाएं चलेंगी, हर दिन कभी कभी अलग। वो प्रार्थना मतलब अपने मन के भाव हैं, तो कभी आप लोग भी बनाएंगे वैसे भाव और आप भी प्रार्थना करवाएंगे सभी के लिए। ठीक है, तो आज हमने इतनी सारी बातें सीखी और हमने समझने का प्रयास किया। कभी आप लोग भी इसी तरह से जुड़ेंगे और अगले कल के क्लास में जो नए लोग हैं वो 2 लोग तो भी भक्तामर श्लोक बोल के बताएंगे और 2 लोग कम से कम उसके भाव बताने का प्रयास करेंगे और 2 लोग आ रही हैं, प्रीति जी सुनाएंगे, प्रीति जी मुस्कुरा रही हैं। तो ऐसे करते हम बहुत सारे लोगों से वो हो जाएंगे। ठीक है, हाँ चलो मंजू बोलो। मैं ये कह रही थी, प्रीति जी मुस्कुरा रही हैं और सुमन जैन, ये 2 जन मुझे सामने दिख रही हैं, ये कल एक एक श्लोक बोलेंगी। और
और मैं वो प्रश्न पूछ रही थी कि इतनी क्लास ली कि मैं पहले श्लोक की स्टोरी क्या है, तो वो चारू बोली कि हमें याद है। चारू ने YouTube से दीदी सीखा है, तो चारू को अनम्यूट कर दे। हाँ दीदी, मैं ना वो पहले इस श्लोक की स्टोरी नहीं, मुझे अभी तुरंत एक्साइटमेंट हो रहा है कि मैं जो परसों मेरे साथ 2 केस हुए, इतने बड़े बड़े मिरेकल्स हुए, वो मुझे बताने हैं अभी। तो मैं बताऊं वो वाले? हाँ बताइए। अभी परसों मेरे घर के सामने, मतलब 50 मीटर भी दूरी नहीं है, मेरे घर के सामने वाली पट्टी पर बहुत कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर एक इलेक्ट्रॉनिक की शॉप में बहुत भीषण आग लग गई। जैसी ये शॉप्स खुली सारी, तो वो एसी वगैरह उसने ऑन करके देखे अपने, उस एसी के शॉर्ट सर्किट से इतनी ज्यादा आग लग गई, उसके गोदाम था ऊपर, उसमें आग लग गई। और जब हम लोगों ने अपनी खिड़की से देखा, वो एकदम धू धू करके जल रहा था ऊपर। मतलब वो मुझे तुरंत देख करके पता नहीं कैसे वो दावा नलम याद आ गया एकदम, कि दावा नल की अग्नि जल रही है यहाँ पर। तो मैंने 40th नंबर का काव्य, 40वें नंबर का काव्य, बस मैंने बिना कुछ सोचे समझे पढ़ना स्टार्ट कर दिया। मैंने बस ये सोचा कि मैं भगवान, मैं तब तक पढ़ती रहूंगी जब तक ये अग्नि नहीं बुझ जाएगी। मुझे उस दुकानदार पर इतना उस समय अंदर से कष्ट हो रहा था कि एक तो ये इतने दिनों से दुकानें बंद है, आज इतने दिनों बाद इसकी खुली है, तो ये पूरी आग लग गई, क्या होने वाला है यहाँ पर, और उसके उसके ऊपर कितनी बुरी बीत रही होगी। और भगवान ये आग कहीं फैले नहीं और लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाए। तो मैं तब तक पढ़ूंगी, मैंने संकल्प लिया, मैं तब तक पढ़ूंगी जब तक ये अग्नि नहीं बुझ जाएगी। तो मैंने लगातार वो 40 नंबर का स्टार्ट किया पढ़ना। और दीदी वो मतलब उतनी देर में पत्रकार आ गए, 3-4 न्यूज चैनल वाले आ गए, और मैं वहां पढ़ रही हूँ। मुझे फोन आया कि तुम्हारे घर के सामने आग लगी है क्या, वो वहां पर न्यूज में आ रहा है। मतलब इतनी भीषण आग लगी थी कि न्यूज में आ गई तुरंत लाइव। और मैं यहाँ पढ़ती जा रही हूँ, मैंने घड़ी देखी, 20 मिनट में वो आग पूरी शांत हो गई पूरी। मैंने आपको फोटो भेजे थे दीदी, मतलब इतनी भयानक आग लगी थी, वो 20 मिनट के अंदर वो शांत हो गई। उतनी देर में न्यूज में भी आ गई लाइव टेलीकास्ट में। तो मुझे लगा कि ये क्या भगवान, ये ऐसी मिरेकल दिखाते हैं, और क्या चाहिए हमें। हम सोचेंगे कि हमारे सामने देवी देवता आकर के खड़े हो जाएंगे, वो खड़े तो होते ही है, बस हमें हमारी दृष्टि नहीं है उनको देखने के लिए। तो मैं आप सभी से ये बात कहना चाहती हूँ कि सच में अगर आप दूसरों को देने का भाव करना शुरू कर देंगे जिस दिन, कि हमें बस करना है, आपने किसी को भी कष्ट में देखा और पढ़ना शुरू कर दिया, तो वो सच में मुझे लगता है कि वो उससे बड़ा मिरेकल और उससे बड़ी शांति का अनुभव कभी नहीं होता। और कल एक और हुआ कि कल मेरी भाभी का फोन आया, उनकी एक रिलेटिव, उनकी बहू को बच्चा होने वाला था, तो वो लेबर रूम में थी और वो पेन नहीं ले पा रही थी, पूरे दिन हो गए थे। डॉक्टर ने बोला अगर नॉर्मल नहीं हो पाएगा तो हम ऑपरेशन ही करेंगे, और ये पेन नहीं ले पा रही है तो ऑपरेशन ही डिलीवरी होगी ऑपरेशन से। तो उनका फोन जस्ट मेरे पास आया, बोली चारू तुम इसको जो है देखो क्या कर रही हो, तुम रेकी हीलिंग दो, तुम श्लोका हीलिंग दो, जैसे भी मंत्रा हीलिंग करती हो तुम करो। मैंने तुरंत उनसे वीडियो कॉल पे बात की, और वो मैंने सच में पहली बार ऐसा देखा था, कोई लेडी लेबर रूम में लेटी हुई है और वो चिल्ला रही थी दर्द से। और मैंने उसे तुरंत स्टार्ट की भक्तांबर जी का, मैंने जो मुझे याद आया दीदी उस समय, सच बताऊं तो मुझे यही नहीं याद आता मैं कौन सा पढ़ूं उसकी हालत देख करके। तो मैंने बस वो 26 नंबर का, हाँ मैंने पहले नंबर का पढ़ा पहले, कि सारी जो भी परेशानियां हैं वो दूर हो जाए, और फिर मैंने 26 नंबर का स्टार्ट किया कि नॉर्मल डिलीवरी हो इसको। तो मैंने थोड़ा सा उसे मेडिटेशन ये बोला उससे कि तुम्हें बेटा होने वाला है और तुम इतनी रो रही हो, इतना चिल्ला रही हो, तो क्या तुम अपने बेटे का स्वागत ऐसे रो के इतना चिल्ला के करोगी, ऐसे रो के अपने बेटे का स्वागत करोगी क्या इस दुनिया में? तो बोली नहीं दीदी। हमने कहा तो तुम क्यों इतना रो रही हो, चलो मैं जो बोल रही हूँ तुम सुनो। वो जैन नहीं थी तो उसके भाव नहीं लग रहे थे, लेकिन मैंने उसे बस स्टार्ट की सुनाना कि हे भगवान इसकी बस किसी भी तरह ये पीड़ा शांत हो, इससे जैसे भी हो बच्चा हो जाए अच्छे से इसका स्वस्थ। मैंने उसे 10 मिनट 15 मिनट करीब दी चैंटिंग। उसके बाद अपने आप फोन कट हो गया, नेटवर्क इशू कुछ हुआ, फोन कट हो गया। फिर उसके बाद 1 घंटे बाद उनका फोन आया कि नॉर्मल डिलीवरी से बेटा हो गया और बहुत स्वस्थ बेटा हुआ है। तो थैंक यू। वो सुन करके बहुत अच्छा लग रहा था वो चीजें। अच्छा, तो सबके लिए होमवर्क है कि ये वेबसाइट पे जाके देखिएगा, यूट्यूब पे जाके देखिएगा कि फर्स्ट श्लोका जो वो अभय पंपालिया ने किया था नॉन जैन होके लिटमस पेपर टेस्ट,
और उसका जो प्रॉपर्टी बिक नहीं रहा था वो पूरा सेल कैसे हुआ वो खुद बता रहा है अभय पंपालिया। तो वो सर्च करना यूट्यूब पे, फर्स्ट श्लोका डिस्टर्बेंसेस आर डिस्ट्रॉयड। और जो होम पेज पे भी वीडियोस है तो उसमें 1 to 12 नंबर श्लोका वाला वीडियो खोलना, फर्स्ट के बाद सेकंड थर्ड, और जरूर से देखिएगा। तो ये आपके लिए छोटा सा होमवर्क है। दीदी एक लास्ट क्वेश्चन है, ये आंसर नेहा दीदी से लेते हैं। उनका मेरे को किसी ने मैसेज करके पूछा है कि रिद्धि एंड मंत्रा में क्या डिफरेंस है, तो उसका वो आंसर दें एंड फिर हम वाइंड अप करेंगे सेशन आज का। नेहा दीदी। रिद्धि एंड मंत्र, रिद्धि मतलब उपलब्धियां। अपने साउल मतलब मुनि महाराज जो तप करते हैं, वो तप करने की वजह से जो उनके आत्मा को उपलब्धियां होती है उसको रिद्धि कहते हैं। दैट मीन्स कि अचीवमेंट्स वो रिद्धि है, और जो उसको एक्सप्लेन करते हैं वो मंत्र है। जैसे ओम ह्रीम अर्हम नमो जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। तो जिनाणम शब्द जो है वो रिद्धि है कि उनको सारी उपलब्धियां प्राप्त हो गई है जिनेंद्र भगवान। ओम ह्रीम अर्हम नमो परमो ही जिनाणम ज्रोम ज्रोम नमः स्वाहा। इसमें परमो ही जिनाणम वो रिद्धि है। मतलब रिद्धि मीन्स कि आपके अचीवमेंट्स तप करने से अपने मुनि महाराज को जो अचीवमेंट्स हुए उसको रिद्धि बोलते हैं। और मंत्र उनको नमस्कार करते हैं, वो मंत्र होता है। जैसे नमोकार मंत्र है, उसमें अरिहंताणम सित, वो रिद्धि मतलब रिद्धि इन दैट सेंस कि उनको सारी उपलब्धियां हो चुकी है, पर नमो अरिहंताणम वो मंत्र हो जाता है। ये दोनों में डिफरेंस रहता है कि रिद्धि अचीवमेंट्स, और वो अचीवमेंट को हम नमोस्तु करते हैं, वो मंत्र है। आचार्य श्री कहते हैं कि रिद्धियां जो है, जो लोग कहते हैं ना कि आपने भक्तांबर सिद्ध किया, आपने कैसे किया, आप विधि बताइए। हमने कभी कोई सिद्ध करने नहीं बैठे, हम तो पढ़ते थे, जैसे यहाँ पढ़ना पड़ती है पेशेंट्स के साथ, ऐसे हम भी पढ़ते थे पढ़ते पढ़ते। तो वो आचार्य श्री कहते हैं कि रिद्धियां स्वयं आके खड़ी हो जाती हैं जब आप पढ़ते हो। जब निष्काम भक्ति से आप पढ़ते हो तो रिद्धि सिद्धियां आके खड़ी हो जाती। तो ये जो रिद्धियां हैं, बोलते हैं कि मिस्टिक पावर्स गेन हो जाते हैं, 1 लाख बार जाप करे तो मिस्टिक पावर्स आ जाएंगे। और मंत्र क्या है? मंत्र श्लोक का कॉन्सेंट्रेट फॉर्म है, जो 4 लाइन्स का श्लोक है, जो उसको कॉन्सेंट्रेट फॉर्म मतलब 1 लाइन में करके बीज मंत्र से वही काम आपका हो जाता है। तो इसके साथ हम आज का सेशन क्लोज करना चाहेंगे। मैं चाहूंगी सिद्धार्थ जी सबको थैंक्स दे दें। सिद्धार्थ जी को अनम्यूट करें तो सिद्धार्थ जी आज का सेशन क्लोज करें। एंड भैया नेक्स्ट सेशन का भी बता देंगे, किड्स का सेशन। भैया यू आर So, जय जिनेंद्र एवरीवन। एज अभी जैसे एडल्ट्स का सेशन खत्म हुआ है, आज दोपहर को 2 बजे ईस्टर्न टाइम, इंडिया के रात के 11:30 बजे, और पैसिफिक में जैसे कैलिफोर्निया और कनाडा की जो वेस्टर्न सिटीज हैं वहां पे 11 बजे आज बच्चों का सेशन होगा। आज स्तोत्र नंबर 3 कवर किया जाएगा, और कल संडे है, कल स्तोत्र नंबर 4 कवर किया जाएगा। आप यहाँ जुड़े हैं, प्लीज अपने बच्चों के साथ वहां भी जुड़िएगा। थैंक यू। और मैं बताना चाहूंगी कि कल पूरे ऑल ओवर इंडिया एडवोकेट्स का प्रोग्राम है 4:30 बजे, तो सारे जन ज्वाइन हो। उसका लिंक अभी मैं चैट बॉक्स में डाल देती हूँ आपको। तो कल 4:30 बजे पूरे लॉयर्स, ह्यूमन राइट के सब, तो जितने मैक्सिमम लोग अपने आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसका मैं ये लिंक डाल रही हूँ आपको, ये लिंक सब लोग देख लीजिएगा और जरूर से ज्वाइन होइए। यूएस वालों को थोड़ा डिफिकल्ट टाइम होगा, पर इंडिया वालों को 4:30 इजिली आप सिद्धायतन के उसके बाद ज्वाइन कर सकते। और मैं चाहूंगी कि सिद्धार्थ जी, अपर्णा जी, नैना जी वगैरह जो भी ज्वाइन कर सकते हैं तो उसको जरूर ज्वाइन करें, सो दैट यू कैन एक्सप्रेस योर व्यूज इन फ्रंट ऑफ so many lawyers and top justice. So सिद्धार्थ जी अपने दोनों क्लासेस के बारे में बताने वाले हैं, और अपर्णा जी अपना स्टोरी शेयर करेंगे, एक्सपीरियंस एंड हैंडल करेंगे। ओके, तो once again thank you everybody and all right, thank you so much everyone,
and we'll say तीन कार मंत्र and कल फिर से मिलते हैं the second श्लोक. नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सब साहुनं नमो कारो सब पावपनासनं मंगलानं च सबे सिंह परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनं मंगलानं च सबे सिंह परमं हवै मंगलम्. नमो अरिहंतानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वच्छायानं नमो लोये सब साहुनं एसो पंच नमोकारो सब पावपनासनं मंगलानं च सबे सिंह परमं हवै मंगलम्. बोलो श्री आदिश्वर भगवान की, मां तुलसी जी महाराज की, भक्तांबर स्तोत्र की, भगवान की, जिन शासन देव की जय. जय Jineन्द्र everyone. Thank you all. Good night, Didi. Good night, everyone in India. Have a nice day. In America, Canada.